world-class mobility infrastructure and multifaceted approach involving various stakeholders, and you are a very important stakeholder to us. The signing of the MOU is a reflection of deep commitments from the key stakeholders in this direction. But the MOU also gives us an opportunity to come together, get to know each other, learn the sensitivities and requirement of each other. Relationship with this MOU becoming the testimony of our commitment to road safety. The basis of the initiative of Surakshit Safar is now shown in the video, which is created by road accident survivors, road safety experts, and of course the school teachers, psychology students. So we will just show you what we intend to do with KV. We gather here to discuss SIAM's Surakshit Safar campaign on road safety education and awareness. Imagine a world where every child grows up to be a responsible and law-abiding citizen. It all starts with instilling in them the importance of traffic rules and road discipline. The habit of obeying traffic rules not only ensures our safety but also teaches us valuable life lessons of responsibility, empathy, and respect for others' rights. The aim of road safety education is to protect our children and young people from the risks of road trauma and lay the foundation for a lifetime of safe road use. This is why, in collaboration with the Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Education and Kendriya Vidyalaya Sangathan, SIAM is embarking on a road safety education campaign at a national level, targeting primary, middle and secondary school children, having 9 interactive modules. Basics of road safety, pedestrian safety, safety gears, thus leaving no stone unturned in ensuring our children's safety. Together, we can create a generation that not only respects the rules of the road, but also understands the risks and adopts safe practices to deal with them. Let's enhance their knowledge about the rules and regulations to be followed on roads to ensure a safer and brighter future. SIAM, building the nation responsibly. The moment has come when the deepening relationship needs to be converted into long-term MOU. Before that, may I request Gadkari sir, please photo up with the short memento we have kept here. रोड सेफ्टी इज एन इनिशिएटिव वेयर गडकरी जी ने अक्षय कुमार जी से और बहुत सारे एक्टर्स से रिक्वेस्ट किया था, और आप जब आपको मालूम पड़ा कि वी आर हियर, थैंक यू फॉर कमिंग. वी आर ऑल एक्साइटेड. ऑल स्टूडेंट्स, केवी स्टूडेंट्स आर आल्सो हियर ऑन ऑनलाइन. दे आर excited to be part of road safety initiatives of Government of India. Today we are signing MOU. रोड सेफ्टी राष्ट्र निर्माण में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज सायम और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बीच ये MOU साइन हो रहा है. In 2014, when गडकरी सर ने प्रभार संभाला, पहला उनका निर्णय था
इंडिया को वर्ल्ड क्लास बनाना इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी एंड leapfrogging of BS4 to BS6 notification came in 2015. 2017 क्रैश नॉर्म्स, फ्रंटल क्रैश, इंडिया की सारी गाड़ियां आज वर्ल्ड क्लास सेफ्टी नॉर्म्स, वर्ल्ड क्लास रोड इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. And sir, the exciting motivation, inspiration from your side in every moment. शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार जी, कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन की आदरणीय निधि पांडे, प्राची पांडे, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सियाम के प्रेसिडेंट मिस्टर विनोद अग्रवाल बैनर्जी, सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहन, सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन को और सियाम को जो उन्होंने रोड सेफ्टी के विषय में मिलकर जो काम करने के बारे में आज MOU किया है, इसलिए हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ. हमारे देश में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख डेथ होती है. 3 लाख लोग इंजरीज में उनके हाथ पैर टूट जाते हैं. रोज 1130 एक्सीडेंट होते हैं और 422 डेथ होती है. एवरी आवर 18 डेथ हमारे देश में होती है और 60% ऑफ द डेथ जो हो रही है उसमें 18 to 34 ईयर्स के लड़कों का, लड़कियों का जो यंग है, कोई IIT इंजीनियर है, कोई MBBS डॉक्टर है, ऐसे लोगों की भी मृत्यु होती है. GDP का 3.14% नुकसान होता है. आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लड़ाई में, आतंकवादियों से लड़ते हुए लड़ाई में, कोविड में, किसी भी संकट में इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती. और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है. ये बात जरूरी है कि मैं आज 9 साल हो गए मंत्री बना हूँ और मैंने पहले दिन से बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसके लिए कोशिश की, पर अभी तक इसमें जैसी कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली. इसका जो प्रमुख कारण है कि सबसे पहले रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी DPR बनाते समय गलतियां होती है और हमने काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और उसकी इम्प्रूवमेंट हमने बड़े प्रमाण पर ली. करीब 35,000 करोड़ उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं. दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार हुआ. अभी हमने स्टार रेटिंग लाया है और जिसके कारण इकोनॉमिक मॉडल में भी एयरबैग्स 6 होंगे. हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें से कभी न कभी एक बात हमारे सामने आती है कि कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और कानून के प्रति डर भी नहीं. ऐसी विचित्र अवस्था है. और हेलमेट पहनना चाहिए, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, कोई क्रॉस करते होंगे रोड तो उसके गाड़ी को रोकना चाहिए. ये जो एक डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, इसके बारे में बहुत कमियां हैं. जहाँ तक ड्राइवर ट्रेनिंग के बारे में भी हमारे यहाँ कोई साइंटिफिक रूप से काम नहीं किया होता. मैं अमेरिका में गया था तो मेरी लड़की महीने भर से स्टडी कर रही थी, उसके बाद बहुत बड़ा किताब था. तो मैंने उसको पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो. उसने कहा मैं ड्राइविंग लाइसेंस के. अगर मैं पूछूंगा कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस कैसा मिला है तो मुझे लगता है उससे अनेक आश्चर्यकारक बातें बाहर आएंगी. तो पहली बात तो हमने हमारे नियमों में काफ़ी सुधार किया है. अब इसके बाद जो मैनेजमेंट थी ड्राइविंग लाइसेंस देने की वो संभव नहीं है. और ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हम खोल रहे हैं. और ये जो रोड इंजीनियरिंग और रोड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो इतने दिन के बाद मैं इस बात के लिए कन्विंस हुआ हूँ कि वो ह्यूमन बिहेवियर का है कि मैं कानून का पालन करूँगा, हेलमेट पहनूंगा,
रोड सेफ्टी के लिए अगर रेड सिग्नल होगा तो मैं उसमें रुक जाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें जो मोबाइल पर बात नहीं करूंगा। और बात ध्यान में ये आई कि ये ह्यूमन बिहेवियर अगर बदलना है तो जो आज बड़े बन गए उनको बदलना बहुत कठिन है, पर जो आज हमारे देश के भविष्य के नागरिक हैं, जो प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी हैं, उनको अगर हम संस्कारित करें और उनके मन में उनके ह्यूमन बिहेवियर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अच्छा ह्यूमन बिहेवियर संस्कारों के साथ अगर हम विकसित कर पाएंगे तो भविष्य में ये प्रॉब्लम और कम होगा। मैं विदेश से आया था तो कस्टम डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति मेरे पास आए और उसने मुझे कहा कि सर मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ क्या? तो मुझे लगा कि वही चेकिंग वगैरह कर रहा होगा, तो वो चेकिंग को किया नहीं। उसने बोला साहब मेरी एक ही सुबह में ट्रैफिक पुलिस था और प्रमोट होते होते अभी कस्टम में काम कर रहा हूँ। तो आप स्कूल में एक ऐसा कियोस्क तैयार करिए कि जिसमें बच्चे खेलेंगे और रोड सेफ्टी के इम्पोर्टेंस को और बाकी सब बातों को सीखेंगे और समझेंगे। एक शब्द में उसका भाव यही था कि हम अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम इसके लिए करें ताकि हमारे बच्चों को इसका महत्व पड़े। तो एक बार मैं अभी शाहरुख खान के साथ एक कैंपेन हुआ था हुंडई कंपनी का, तो उन्होंने कार्टून का एक बड़ा किताब तैयार की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मुझे हमारे कमिश्नर सेंट्रल स्कूल की और एजुकेशन सेक्रेटरी उनसे अनुरोध करना है कि प्राथमिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा में ये रोड सेफ्टी के बारे में जो रूल्स ऑफ द रोड और ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको बदलना है। इसके बारे में आपकी ही बोर्ड ऑफ स्टडीज और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी सलाह से सिंपल भाषा में इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण उपलब्ध होता है तो ये काफ़ी बड़े प्रमाण में इन भविष्य के हमारे जो नागरिक बनने वाले हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। मुझे याद है मैं 2004 में महाराष्ट्र में अपोजिशन का लीडर था और मेरा पुलिस सिक्योरिटी के में बड़े 7-8 गाड़ियों के तोहफे में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर 4 जगह टूट गया। तो बाद में ध्यान में आया कि मेरे साथ जो पुलिस ड्राइवर था डीबी कार में, उसको कैटरैक्ट था। फिर उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र सरकार में जितने सरकारी अधिकारी हैं उनकी आगे जांच करने का कार्यक्रम किया गया। तो मुझे पता चला कि 40% लोग कैटरैक्ट उनको हुआ है। फिर मैं ये बात एक्सीडेंट के बाद एक बहुत ही बड़ी मंत्री उस समय मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे एक्सीडेंट होने के बाद मैंने अपने ड्राइवर को चेक किया तो वो ड्राइवर की एक आंख अंधी हो गई। फिर मुझे एक मुख्यमंत्री ने कहा, मैं नाम नहीं बताता सबके, उसने कहा मेरा जो ड्राइवर था उसके दोनों आंखें अंधी थी पर वो एक आवाज के साथ गाड़ियां चला। को सलाह देता हूँ कि पहला काम करिए कि आपके ड्राइवर जो होगा उसका प्राइवेट डॉक्टर से एक बार आके जांच करा लीजिए, यानी कितने बड़े प्रमाण में किस प्रकार की स्थिति है और इसकी कितनी कीमत हम पे कर रहे हैं। ये आप तभी समझ पाओगे जब किसी के घर का यंग लड़का इंजीनियर डॉक्टर बड़ा पढ़ा लिखा उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है। आपके परिवार में जब आपका कोई छोटा भाई बहन चली जाती है कितना बड़ा उनका पूरा लाइफ खराब हो जाता है। जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं उनका पूरा रोजगार चला जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लोगों ने हमको सहयोग किया। अमिताभ बच्चन जी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं आपके लिए जो कहेंगे वो काम करने के लिए तैयार हूँ। पूरे दिन भर एक टीवी चैनल के लिए उन्होंने दिन भर शूटिंग किया और पूरा रोड सेफ्टी के लिए किया। अक्षय कुमार जी ने किया और आज क्रिकेटर्स जैसे अभी हमारे कलाकार भी आए हैं, ऐसे अनेक लोग सोशल कॉन्शियसनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनका जो स्वभाव है उसके अनुसार इसमें काम करने के लिए तैयार है। NGOs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल, टीचर्स के फोरम और बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम अच्छे रोड बना रहे हैं, कभी कभी लगता है कि अच्छे रोड बनाकर एक्सीडेंट भी होते तो मन को बहुत दुख होता है। अब मेरे कल एक 15-20 दिन पहले की बात है कि दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक स्कूल बस जिसमें बच्चे नहीं थे
वो ड्राइवर रॉन्ग साइड लेके आ रहा था और एक एसयूवी के साथ टक्कर हो गई और 6 के 6 लोग स्पॉट पर मर गए। आप समझिए कि छोटी सी निग्लिजेंस के कारण कितनी बड़ी घटनाएं हो रही है। एक कहावत है कि स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न द हाउस। हमारे बिहेवियर के कारण हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस प्रकार से इतना दुखी हो जाता है कि मुझे लगता है कि एक प्रकार की जो बर्बादी है इसको रोकना है। अब ये वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इसमें रोड एक्सीडेंट में। जहाँ भी जाते हैं तो जब लोग इसका वर्णन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता और इसलिए स्वाभाविक रूप से अनायास शिक्षा सचिव यहाँ है और आज ही पार्लियामेंट में राज्यसभा में मैं और शिक्षा मंत्री बाजू में बैठे थे और उस समय सवाल हो रहे थे तो मैंने उनको कहा कि सेंट्रल विद्यालयों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते। जो गरीब लोग हैं उनको हायर एजुकेशन अच्छा एजुकेशन देने में ये बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है और आप अगर इसकी संख्या बढ़ाओ और संख्या बढ़ाने में जैसे क्वालिटी तो वही रहेगी पर उसके साथ साथ मैं थोड़ा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मेरा दिमाग चलता है और मुझे पता है कि सरकार में बजट की कमी होती है तो मैंने कहा ये मॉडल को जैसे एक होटल रेस्टोरेंट अच्छा चलता है तो अपनी फ्रेंचाइजी खोलता है और उसकी क्रेडिबिलिटी और गुडविल को वो कंट्रोल करके वो भी चलती है। तो सेंट्रल स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बहुत गरीब लोग आते हैं कि सेंट्रल स्कूल में एडमिशन है। हमारे पास पहले अधिकार थे 10 एडमिशन देते थे, अभी बंद हो गए इसके कारण काफ़ी लोग पीछे चले जाते हैं। पर ये इतना अच्छा काम सेंट्रल स्कूल कर रही है कि मुझे बहुत खुशी है। मैं एक ट्रस्ट का चेयरमैन और मैं एकल विद्यालय चलाते हैं। 1200 हमारे विद्यालय है, सरकारी ग्रांट कोई लेते नहीं, 1800 टीचर है और हमारी स्कूल जो चलती है वो पूरी तरह विदर्भ महाराष्ट्र की नक्सलाइट एरिया में चलती है। गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी विच इज द कैपिटल ऑफ नक्सलाइट्स। 6 बजे कोई गांव में नहीं रहता तो हमने वहाँ की लड़कों को टीचर बनाया तो हमारे टोटल 1400 टीचर अभी हैं तो उनका 4 दिन का वर्कशॉप लेते हैं। तो अभी उनको हमारा जो कोर्स है उसमें नखून कैसे काटना, अखबार कैसे पढ़ना, साबुन से स्नान कैसे करना। एक गांव में ऐसा था कि नमक के बजाय लाल मिट्टी, लाल चिट्टियाँ बारीक करके वो खाती, इतनी भयंकर स्थिति है। और वो पूरा ट्रैक छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र और महाराष्ट्र के बीच में है और काफ़ी बड़ी नक्सलाइट मूवमेंट तीनों पार्ट का सेंटर है। तो जब मैंने उनको कहा कि इनको भी हम रोड सेफ्टी के बारे में सबको बताएं तो स्वाभाविक रूप से उनको भी हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सामाजिक संगठन, NGOs, टीचर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, इनका बहुत बड़ा सहयोग इसमें मिल सकता है। और अभी मुझे विश्वास है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो कुछ करना था वो हमने किया है। अब हमारा स्टार रेटिंग आने के बाद हमारी गाड़ियाँ काफ़ी रोड सेफ्टी के बारे में अच्छी होगी। हमने ये जो DPR बनाते हैं रोड इंजीनियरिंग में, इसमें भी काफ़ी सुधार किया है, काफ़ी बड़े प्रमाण पर। मैं तो इसके बारे में बहुत कठोर भूमिका लेता हूँ। मैंने अभी यहाँ तक कह दिया कि अब इसके बाद तो इस रोड पर एक्सीडेंट तुम्हारे गलती के कारण हुआ तो तुम्हारे ऊपर 302 के अंदर एफआईआर दर्ज करके नॉन वेलेबल ऑफेंस करके तुमको अंदर डाल दो, क्योंकि आप संवेदनशील ही नहीं है। बार बार वही गलती है, क्योंकि आज का विद्यार्थी ये आज सभी दृष्टि से उसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है और नॉलेज ये ऐसी ताकत है कि उसके कारण उसका जीवन आने वाले समय में बहुत परिपूर्ण होने वाला है। मैं अक्सर इस बात को हर बार जिक्र करता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं अक्सर याद करके उसका पालन भी करता हूँ कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और हमारे जो टीचर हैं उनका इतना प्रभाव होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को जो संस्कार दिए, पढ़ाई दी, उसको पढ़ाया, वो जीवन भर उसका उसी प्रकार से पालन करता है। विद्यार्थी कैसा भी हो, अगर टीचर अगर पावरफुल है तो उसका अनुकरण करता है और इसलिए कोई भी मटेरियल को हम बदल सकते हैं। अभी दिल्ली में हमने UR2 करके रिंग रोड बनाया है। या दिल्ली में 3 टेकड़ी है प्रसिद्ध कचरे की, एक गाजीपुर करके, बहुत पीछे पड़ा
तो उसमें से 30 लाख टन कचरा हमने निकाल कर रोड में डाल दिया। अब धीरे धीरे हम कचरा भी रोड में डाल के हमारा भी फायदा हो रहा है और रोड जल्दी बनाने में भी अनेक देशों ने अपना कम कर दिया। 4 दिन पहले वर्ल्ड बैंक के वाइस चेयरमैन मेरे पास थे, वो भी हमको काफ़ी मदद कर रहे हैं। और हमारे देश में जो अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर यही हमारी समस्या का मूल है और शुरुआत से उसको बदलना, ये अगर हमने किया तो निश्चित रूप से हमें सफलता हासिल होगी। मुझे बहुत खुशी है कि सीएम ने ये कार्यक्रम हमारे शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ये कार्य करने का निर्णय किया है। मुझे और एक ऐसा लगता है कि और स्कूल कॉलेजेस में इसको बढ़ाने में आप ज़रूर सोचिए। रोड सेफ्टी का जो दिन है उस दिन में उस स्कूल में अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स होंगे, फिल्म स्टार होंगे, वो आने के लिए तैयार है, प्रतिज्ञा देने के लिए तैयार है, जिनका इन प्रभाव है विद्यार्थियों पर, युवाओं पर। वो अगर इस बात के लिए लोगों को कहेंगे तो इसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये एक अच्छी शुरुआत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने की है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारे आत्मनिर्भर भारत में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है और मैं चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री को हम लोग 15 लाख करोड़ की बनाएं। भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब देने वाली ये इंडस्ट्री है और 50% एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है। अब ये बात भी है कि मैं अभी डीजल पेट्रोल के पीछे बहुत लगा हूँ और मैं कहता हूँ कि अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन ये आए और हमारा प्रदूषण भी कम हो, तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री भी बदल रही है। और मेरा विश्वास है कि इससे निश्चित रूप से जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है सोसाइटी के, एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और मुझे लगता है कि ये हमारा एक प्रकार से एथिक्स से रिलेटेड एजुकेशन, ट्रेनिंग से प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रबोधन और प्रशिक्षण शिक्षा विभाग में ही होता है और उसके साथ जो नया रिसर्च है, जो नए इनोवेशंस है, जो नई टेक्नोलॉजी है, नए एक्सपेरिमेंट्स है, उसके आधार पर अगर निश्चित रूप से ये इंफॉर्मेशन, जानकारी हमारे बच्चों को, छोटे छोटे भाई बहनों को मिलेगी तो एक बहुत जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनका जो व्यवहार होगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश में भी एक्सीडेंट का परसेंटेज 0 होगा। आप सबके सहयोग से वो दिन जल्दी आए, यही हमारी सबकी कामना है। उसी की शुरुआत में सीएम और हमारे सेंट्रल स्कूल ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लिया है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Leader is and Rajkumar Rao ji, you are the inspiration for millions of students, millions of youngsters. So please come on stage and have a photo shoot with Honorable Gadkari sir. Thank you, Rajkumar Rao ji, for your presence. Students will be excited to follow you, and we assure you that commitment given to Sir, inspired by his message, we will do everything, and we will take this KV initiative further to other schools as well, and we will ensure that it's translated into other language as well. May I now request Mr. Rajesh Menon to give his closing remark on behalf of industry. सर मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ आपके एक्सेंट आगे करने के लिए। Sincere thanks to Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji. Thank you very much, sir. You have been very vocal to the cause of road safety. Thank you for your inspiration, your support, which motivates us to embark on this journey. Thanks. Sincere thanks to Shri Ms. Nidhi Pandey, Commissioner Kendriya Vidyalaya Sangathan. It's been a pleasure to partner with KVS SIAM, and we will continue to work and deepen this partnership. Thank you to Ms. Prachi Pandey, Joint Secretary of Education. She has been very supportive in the entire initiative. And thanks, of course, to President SIAM, Mr. Vinod Agarwal. So thank you very much. With this, we come to a conclusion of the formal session per se. So thank you very much.
We would also request Breath is getting shorter, Mom. I'm becoming very scared. Please don't cry for me, Mom. टिकट नहीं मिलती है, ले तू भी लगा ले। भाई देख ले, येलो लाइट हो गई है, स्पीड थोड़ी कम कर ले। अरे भाई ग्रीन पे 40-50 और येलो लाइट पे अरे तुझे कहा था ना घर से हेलमेट लाइयो। देख सामने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं और रेड लाइट भी हो गई है। अरे सामने तो रेड लाइट है, उधर तो देख ग्रीन लाइट। चल उस तरफ से काट के चलते हैं। सड़कों पर हमें ऐसे दृश्य रोजाना देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं, ये कोई पेशेवर गुंडे या सजा याफ्ता अपराधी नहीं होते। ये होते हैं हम और आप जैसे लोग जो सब कुछ जानने बगैर भी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं। ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंचती तो हाफ डे लग जाता। एक रेड लाइट जंप कर ली तो क्या हुआ? सब लोग रॉन्ग साइड से जा रहे थे, मैं भी रॉन्ग साइड से चला गया तो क्या? आजकल के बाइक चलाने वाले हवाई लौंडे इतना गंदा कट मारते हैं, बाइक कहीं भी घुसा देते हैं। एक दिन मैंने क्या रॉन्ग साइड से कट मार दिया तो मेरे को मेरा चालान ही कर दिया। गाड़ी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। बिना हेलमेट बाइक चलाओ मेरी मर्जी, बिना गेट पे स्टंट दिखाओ मेरी मर्जी, बिना हेलमेट बाइक चलाओ मेरी मर्जी, बिना गेट पे स्टंट दिखाओ मेरी मर्जी। पिछली साल 32,000 से ज्यादा रेड लाइट जंपिंग के केसेस, 14,000 से ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस और 35,000 से ज्यादा रैश ड्राइविंग के केसेस सड़कों में दर्ज हुए हैं। हमें रोड ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। हमें रोड ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना अरे चाहिए। चुप, क्या है ये जेब्रा क्रॉसिंग? कभी देखा है? जेब्रा क्रॉसिंग पे तो आयुष क्या हुआ? आयुष का अंकल को कॉल करो। अंकल को कॉल करो। अंकल हम बाइक से जा रहे थे, बाइक में और हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्या बेटा कहाँ हो तुम? नोएडा टाउन में जल्दी मैं आ रही है। आ रहा हूँ। बेटा आयुष आप बोलो। बेटा आयुष आप बोलो। बेटा क्या हुआ? बेटा मैं तुम लोगों से मना करा था बिना हेलमेट के मत जाना। बेटा आयुष आप बोलो। बेटा सड़कों पे ऐसे एक्सीडेंट्स हर दिन होते हैं, रोज भी होते हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद क्या ही होता है? जब ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं हमेशा हम देखेंगे कि कोई तो मर ही जाता है। क्यों मरते हैं लोग? क्योंकि समय पे कोई पहुंचता नहीं है उनके पास। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि लोग सोचते रहते हैं कि कॉल करेंगे, वीडियोस बना रहे होते हैं, चलो अब कॉल कर लेते हैं पुलिस को, चलो अब एम्बुलेंस को कॉल कर लेते हैं। तो करता कौन है? कोई नहीं। क्यों करेगा कोई बताता भी है किसी को करने के लिए कॉल? नहीं। तो अब ये भी तो याद रखो कि कॉल तो करना होता है, ये तो कोई याद ही नहीं रखता। तो जिम्मेदारी किसकी है यहाँ पे?
हमारी, आपकी या सबकी? क्या किसी की जिंदगी बचाने के लिए हम थोड़ी सी इनकी मदद नहीं कर सकते? हम लोग यही पे देख के चले जाते हैं कि इनकी जिंदगी कोई दूसरा आके बचाएगा। आई थिंक वो सर, हाँ सर, वो हम सामने सर के कैमरे में देख लेते हैं। हाँ जी। Thank you, Anshul. All the very best. थैंक यू, थैंक यू। Please join for dinner now.